Maximum number of customers belong to which age group? Simply, that I want to understand. Based on age, my target Customer distribution based on age. किस age group में ज़्यादा customers हमारे data set में? I want to understand that, so I can focus on my target audience. Okay? अब इस subject के लिए chart बनाओ मुझे insights बताओ. What chart is most suitable for this scenario and tell me the output. Just age wise अपने customer को beyond कर सकते हैं customer. So create chart for this scenario for this objective and tell me what is the output. दिया तो है एज दिए हुए कस्टमर डिटेल्स And please create this chart on a new page. Same dashboard and I page पे create a new page and find the solution for this objective. कौन सा chart suitable रहेगा? बार चार्ट. And what is the output? क्या लगता है? Who is our target audience? 20. एक कुछ insight बताओ कस्टमर को. आपने मैनेजर वैसे नहीं बताओ ना 20 इसमें. मैनेजर को क्या लिख के भेजोगे? If you want to write a single line to send the message to your manager or top management, what would be your line? 20 to 25. ये वाला dashboard कैसे करेंगे? अभी ये काउंट क्यों नहीं आ रहा? क्या आउटपुट क्या है? कैसे प्राप्त करोगे आउटपुट? 20% of the customers are from the age group of 20 to 25. 20, how many percent? 20 to? 20% of the customers are from the age group. Are you sure with the number 20%? 30 है total मतलब 149 में से. Calculation कर रहा था. Anybody else who want to add any new stuff? एज ग्रुप 20 में बहुत सारे लोग ये और कुछ Anybody? Maximum will be range of 20 to 25. Maximum or range of 20 to 25. Okay. कोई? Anybody else? ये तो बता दिए maximum 20 से 25. और कोई? बेंच में आगे ओनर्स के ग्रुपिंग बट बेटर नहीं हो जाएगा. वो तो जाएगा कैसे नहीं बट सेगमेंट के हिसाब से करना है. Has anybody what is insight? Simple bar chart बनाना है. Yes versus count of customer का simple है, right? काउंट ऑफ कस्टमर Insights क्या आ रही है? Maximum customer if somebody is saying 20 to 25. Okay. Anybody else? Category wise कर सकते. किस category में? So there are 50 customers. That's why I want to understand what is your insight in the current analysis. So category and average age. इस category में this age Details बना देंगे. Category अच्छा उसमें जो brand जो product category है. Okay. डायरेक्ट बनता है कि New group. Similarly segment कुछ और हरकत करेंगे. मिनिमम साइज वैल्यू number of bin size How many 5. people have created that simple column chart, bar chart, age versus count of customer? अच्छा कितनों ने Power BI फाइल ओपन कर ली है? अरे तो मत उसके उसके बाद दूसरा न्यू पेज बना के चार्ट करें. चार्ट बन गया. Now what is the problem when you creating insights from the current chart? Listen to me. Because whenever we talk about the target audience in terms of age, we always go with the age groups. We don't say कि this particular age है highest customer count. ये 21 का highest customer count है तो सारे 21 वालों को ढूंढो उनको target करो. We don't say like this, right? We always say कि those who are in the early 30s, right, or early 20s, or 20 से 20-30 age group. Have you got this? When you talk about the government affiliate
prime working group, mature working group, or senior citizen or children, right? So you have to understand the category. So एज पे इंडिविजुअल कॉलम से इंडिविजुअल एज पे कभी हम लोग टारगेट ऑडियंस डिफाइन नहीं करते हैं. सिंपली कोई भी इंडिविजुअल एज पे एनालिसिस परफॉर्म इजीली होती नहीं है. बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, राइट? सो इंडिविजुअल एज पे कोई भी we are not going to perform any analysis. What we need to do, we need to convert multiple categories from this age. जो एज कॉलम है इसके मल्टीपल कैटेगरीज बनाए. अब रिमेंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ ग्रुप. ग्रुप वाला कांसेप्ट ठीक है ना? Yes, sir. जब क्लास ओवरफ्लो हो रही थी स्टेप बहुत ज्यादा थी. And that day we have discussed the concept of group. Now listen to me. Grouping करके there are two way of it. जो अप्रोच है पहली अप्रोच है group. Okay, listen to me. If you want to create category, जैसे 19 से 25 के कैटेगरी बनाए. Okay, इसमें क्या करना है? अर्ली वर्किंग. Okay. Second one line 26 से 40. This will call prime working group. I am just talking about the when I define as concept. Okay, तो change हो सकता है. Just example. 41 से 55. That is the mature working group. And 14 से 19 is children whatever. 3 ranges group. And 55 to 65 senior citizen. Or video. I got this. So, if you want to create this kind of range, what is the important in this scenario? That the range is varying. हर ग्रुप की रेंज अलग अलग है. कैन यू सी दिस? फर्स्ट ग्रुप में रेंज कितनी है? 6 ईयर का. सेकंड में कितना है? 15 इयर्स का. थर्ड में कितना है? 15 और 16 इयर्स का. अगेन उसमें कितना है? 10 इयर्स का. हर ग्रुप इफ यू हैव टू क्रिएट अ ग्रुप और रेंज इज डिफरेंट फॉर एवरी ग्रुप. इन दैट केस यू यूज ग्रुप अप्रोच. जो लास्ट क्लास में किया था. सेशन नंबर 3 में किया था. ये ग्रुप बनाएंगे. एक साथ सारे के एज ग्रुप होंगे. इस कैटेगरी में कैटेगरी नंबर ग्रुप ऐड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करो. इफ यू रिमेंबर दैट विंडो. जो भी लोग थे उसका नोट्स भी मैंने दिया ग्रुप 3 सेकंड. ओके, ग्रुप्स कैसे बनाना. तो वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ अप्रोच. सेकंड अप्रोच क्या है? पहले सुन लो फीलिंग लेना. जल्दी में लगता है. सेकंड अप्रोच है बिल. क्रिएटिंग बिल्स. ओके, बट इसमें क्या होता है कि क्रिएट ग्रुप और द रेंज विल बी सेम. फॉर एग्जांपल 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50. सो अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें क्या है? ग्रुप रेंज जो है वो कांस्टेंट है. इफ यू वांट टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ कैटेगरीज यू हैव टू यूज बिल अप्रोच. और जो रेंज होता है उसको बोलते हैं बिल साइज. जो रेंज होती है उसको बोलते हैं बिल साइज. So bill size should be same for all age groups. Simple. So there are two way approach to deal with the age in converting into groups. Okay, one is group approach, second is bill approach. If range is varying, use group approach. If range is not varying, is a constant for all the groups, then you have to use bill approach. अब जो नोट सारा समझ लीजिए. मिस्टेक आइडेंटिफाई करना बहुत है. 11 फर्स्ट केस 11 से 20 कर लेना. अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा. ऐसे तो 41 to 50 की गणना हो गई. या नॉर्मली डिफाइन डिफरेंट ग्रुप एज ग्रुप कैटेगरीज. तो उसके हिसाब से तो ग्रुप अप्रोच कर लोगे. जस्ट डिपेंड करेगा कि व्हाट इज रेंज. क्यों रोएगा भाई? तो क्या भाई क्यों रोएगा? अब लोग Guys, I have given time to make the notes, not to discuss with each other. If you have any doubt, you can ask me directly. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं. इन ग्रुप्स का यूज करना देयर विल बी डिफरेंस क्या है ना चले. मैं बताऊं मतलब भाई इसमें बनानी अच्छी बात है. ग्रुप कैसे बनाना बेसिक.
जो स्टेप मेरे साथ चल रहा है, जो लोग आगे काम करते हैं वो वेट करते हैं। There are two approaches, creating groups and bins. Depends करता है किस टाइप की कैटेगरी बनाना है, simply. That is a different range, this is a constant range. अब देखो bins कौन है, right? लिख लिया, notes बना लिए। Guys, जो मैं notes, class notes, drive tech note कर रहा हूँ, उस पर dependent मत होना, discussion कभी उसमें नहीं होगा। उसमें सिर्फ जो 4 सवाल की steps हैं, if you see the notes. अगर notes देखें तो सिर्फ मैंने steps mention कर रखी हैं। So I don't want you need to memorize the steps. वो objective नहीं कोर्स का, but discussion के लिए क्लास में आता है, concept समझने के लिए। Not clear? So we have to work on the age column. So this is right now. What is the data format for age? Continuous. Sum is not data format. Continuous 1 to 3 continuous, okay? Yeah, number. So bin का एक और purpose होता है, it will convert continuous data into categorical data. ये क्लियर है, और फिर प्रश्न क्वेश्चन। The purpose of bin is एक monthly derivation देखें, subsequent deadline. Convert. The purpose of bin is it will convert continuous data into categorical data. Continuous into categorical. बाद में categories बना देना, तो भी बना। बेहतर एक mark. Okay? अभी चलो, please. कैसे करना है? एक बार देख लो, अगर आप explain करना है, please. So age ये वाला है. If we just go to the age field, इसमें more options हैं, 3 dots. If you go to the more options, अभी मत करो, देख लो. If you go to the more options, यहाँ पे एक option आएगा new group. मैंने सीधे bin और group का direct option नहीं है. Option है new group. Can you see this? If I just click on that, focus on this window. I will window को देखो. Please. Bin name. And age bins लेना चाहते हैं, age category नाम पे whatever name you want to give to the field, okay? यहाँ पे change कर दो. Type में देखो. Now this is first is list. If we just select list, वो group वाली window open हो जाएगी, जो हम already discuss कर चुके हैं. Got it? So group वाली window, left hand side में all values और right hand side में group बनाए हैं. Add, drag and drop जो भी चलते हैं. Okay? उसका मैंने notes में screenshot दे रखा है. List वाला option है, if you want to use this approach. Then next option क्या है? Bin. I'm going to select bin option. Minimum and maximum value it will automatically pick from your range. Age की range से उसके minimum और maximum value define कर दिए. इसके वजह से तुमको define क्या करना है कि bin size क्या होगा. कि 5 का रखना है, 10 का रखना है, 20 का रखना है, 25 का रखना. अगर range बहुत ज़्यादा है, for example sales वाले column में अगर range बना रहे हो, ये जो sales दिया है, high sale, low sale, mid sale, whatever it is, तो उसमें range बहुत होगी. 1000 से millions तक जा सकती है. So bin size में भी millions से बने thousands में, right? तो तुमको minimum maximum value पता है. This is just for to define the bin size. एक suggestion भी देगा कि 4 का bin size बना दो. Okay? You can modify this one. So I'm going to create bin size for the 10. 10 का क्या मतलब है? ये range जो भी वो 10 है, जो मैंने यहाँ show करा. Got this? तो मैं 10 बनाया. वो इसको 5 का बना लो, उसको 4 का ही बनाओ. So we'll have different kind of charts. Just understand this window. जहाँ type में अगर list select करोगे, then you will get to this option. Go window. Age पे जाके new group पे click करके, we'll get this window. List. मेरा भी नहीं आ रहा, मेन वाला ये नहीं आ रहा. मैं बिल्स में कर रहा हूँ, इसलिए हो रहा है ऐसा. मेन वाले इस वाले को इस वाले को एडिट ग्रुप्स किया तो उसने लिस्ट में Don't just follow whatever I'm saying. You can create a bin size of 5, 4, whatever you want. Okay? Whatever you are thinking. How many groups you want? From 19 to 65 में 10 लेके तो you will get 7 groups. Simply. Got this? इसको 10 कर देना साइज को.
ठीक है सही है न्यू ग्रुप्स Okay, now listen to me. I just click OK. अभी तो कुछ नहीं होगा. Now if you see in the data pane, you can see there is a new category, new dimension. क्या आया? एक इसका नया dimension आ गया. यस सर अब this is categorical data. This is not the continuous or summation. You can't see the summation symbol. अभी कुछ नहीं करना. Please listen to me. I am just going to create a vertical column chart, age names and count of customers. Now you get a proper count in each category. Now how to read this chart, please? First column is from 10 से 10 to 19. Second is 20 से 29. Third is 30 से 39. 40 से 49. तो highest customer किस रेंज में है? 20 से 29. अगर ठीक है, this is very thin, you can make 50 bin size 50. अगर टारगेट ऑडियंस को और समझना है, ओके? तो वहीं पे ग्रुप्स में जाके किसी कैटेगोरिकल ग्रुप में जाके बिल साइज चेंज कर दो, राइट क्लिक करके एडिट ग्रुप. अब इसमें मुझे परसेंटेज लेवल ऐड करो, परसेंटेज लेवल ऐड करो, कितने परसेंट कस्टमर हैं इन ईच कैटेगरी. परसेंटेज लेवल फॉर एवरी ग्रुप कैटेगरी, एज ग्रुप कैटेगरी, हाउ मेनी कस्टमर्स आर देयर इन परसेंटेज. ठीक है सर परसेंटेज बता रहा करना कैसे ऐड करना है, मल्टीपल चार्ज करना है. 20 से 29 में कितने परसेंट कस्टमर हैं? 28.8. Yes. Hello. आई कहां से आया वैल्यू लेबल डेंसिटी अप्लाई सेटिंग्स काउंट में जाऊंगा तो फिर तो ठीक है काम करते हैं मेरा 20.13%. क्या कैसे क्या कहां से आया कैसे क्या सिक्स का डाला और ये डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ काउंट क्या डाला डिस्टिंक्ट डाला है कि खराब लग रहा है काउंट से Okay, how many people have done this? कितने लोगों ने हो गया? डिलीट करके वापस Now, listen to me. What is the percentage add कर लिया लेवल? डेटा लेवल percentage add कर लिया कि नहीं? यस सर Please add that, okay? Percentage में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे percentage में परसेंटेज तो अभी मैंने कर दिया है और डेटा लेवल ऑन करना है. फॉर्मेट में डेटा लेवल ऑन Simple, okay? Now listen to me. तो उधर What is the problem with this? इसमें जाओ इस चार्ट में भी क्या प्रॉब्लम है? डेटा अच्छा वही सर ने 10 लिया मैंने 5 लिया है Now what is the problem with this? इस चार्ट में भी क्या है? In terms of visualization, range is not clear. वही Why x-axis की जो range category that is not clear. अब इसको edit नहीं कर सकते हैं. If you want to show the proper range category, you have to use loop. Because इससे आप ये भी बना सकते हैं. Equal range वाला कभी कहीं बन सकते हैं. This is what generic. यहाँ पे group name define कर सकते हैं. So if you want proper group names here, then use this approach. Simply, आप groups के नाम हम लोग edit कर सकते हैं. You got this? So you can use that approach. List all options. Now objective 5. Notes लिखने हैं, notes लिख लेना. You want some time for reading notes? If yes, you can take 2 more minutes. Then we are moving to the objective 5. So basically what you can do, अगर इसकी भी करना चाहते हो
जब एक्टिव क्लास हो जाएगा यहाँ पे एक्सेप्शंस के लेवल्स इसका लेवल्स को रिमूव करके और इसमें टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर दिया वो एक्टिव क्लास बहुत ज्यादा लिस्ट टेक्स्ट बॉक्स से ऐड कर नहीं इसमें तो सेलेक्ट जल्दी हो जाता है ना सेलेक्ट मेन रीजन सेलेक्ट इजी टेक्स्ट बॉक्स से बेटर होता है उसमें भी 25 कुछ निकले बाहर बट इसमें वो नहीं दिखेगा कंट्रोल चेंज कैसे करें करना वही वाला उसमें बार-बार बनाने नहीं ना उसमें डायरेक्ट ग्रुप वाले एकदम जाके इधर से लागू कर दिया 10 to 10 1 जाके 20 सिलेक्ट करके इधर चले जाओ ग्रुप नेम देखो ओके ऑब्जेक्टिव 5 क्लास चीज तो चेंज हो सबको अनग्रुप टाइप ऑब्जेक्टिव 5 कर लिया now I want to understand which state has highest sales. Which state has highest sales? किस स्टेट से highest sales हो रही है? किस स्टेट में? तो which state has highest sales? Simply, किस स्टेट में highest sales हो रही है? Objective 5. Now, do we have sales statement of a chart? Do we have sales field? profit Have we have clear quantity or price Do we have a sales field? no No. So, how can we calculate sales field? price and quantity Quantity. Now listen. Very important. Everyone, जो भी करना भी लिखना छोड़ो. Now, we want to create some. We want to do some calculation. Okay. Now, the calculation, there are two options. Okay. First, in which language you can do the calculation? First, understand this. So, in Power BI, there are two languages. One is M. Second is DAX. DAX to सुना होगा. And after most of the time I use this word DAX. The full form is data analysis expressions. Okay. So there are two programming languages that work in Power BI. One is M. Second is DAX. जितने Power BI के बेस पर कोई भी interview preparing for any interview, there will be one question on DAX. Interview इसमें question पूछेगा. Simply. किसी भी जॉब प्रोफाइल में कहीं Power BI लिखा है, if you are preparing or you are facing that interview, there will be one question on DAX. Simply. Okay. So this is important. If you are going to be expert in Power BI. Now listen to me. कि ये कहाँ पे यूज होता है ये कहाँ पे यूज होता है Now if I go to the transform data page, so कौन सा विंडो ओपन होगा transform जो पहले आता है transform data page पे कौन सा विंडो ओपन होगा Power Power Query Query. Editor. So Power Query Editor में whatever it will perform, every activity is recorded in right hand side, am I right? हर एक्टिविटी का क्या होता है एक फंक्शन कोड होता है कैसे दिस yes sir हमने इसमें क्या लगाया था we removed column number 13 और 11 12 and 13 लेकिन हमने तो यहाँ सेलेक्ट करके रिमूव किया था you can directly type this function also okay can you see this table dot remove column type this column so कुछ लोग they don't perform activities like that they just type the formula now this language is here the Power Query Editor language is only table.bari that is the language Power Query Editor इसका फंक्शन अलग होता है इसका सिंटैक्स अलग होता है ओके so whatever language that is used to write functions and formula in Power Query Editor that is the M language M programming language simply the table dot format okay now if I close and apply now if you are going to write any function and formula to create a new field on Power BI page यहाँ पे जो लिखोगे that we going to use with the DAX तो Power BI page के लिए DAX यूज होता है if I am going to create a new field on Power BI page whatever language I am going to use that is DAX data analysis expressions अभी जैसे सेल्स की फील्ड बनानी है तो उसके लिए कोई प्रोग्रामिंग
जैसे कि एक्सेल में वीबीए प्रोग्राम करते हैं, राइट? वीबीए पेज देखा था कि नहीं? यस सर, देखा ही होगा एक्सेल में। देखा। तो उसमें वीबीए प्रोग्रामिंग होती है, इसमें डेक्स प्रोग्रामिंग। आई गॉट दिस? उसमें फॉर्मूला के स्पेस आएगा, उसको डेक्स प्रोग्रामिंग Record just give macros. the functions, commands will create the field. Now listen to me. Now if you want to create a new field, okay, there are two options. अभी बहुत important है, lot of questions will come to it on this session I'm telling you. Listen to me. So I want to create a sales, okay? अब वो sales, if I go there, for example, मैंने price select किया, then I go to the table tools. यहाँ पे calculation you can see 4 options. You can see this 4 option. If I select the field, I go to the table tools. इसमें calculation वाले field में कितने option हैं? 4. The second वाला जो ऊपर वाला insights वाला that is same. Quick measure and new measure both are same. ये table वाला. The focus part is creating new measure and new column. So whatever field you want to create, that field should be as a new measure or new column. What option that should be suitable for that field? Now this you have to decide. कोई भी random नहीं लेना है. So any field that you want to calculate, that should be with two options, either as a measure or as a column. ये लिख लो. तो कोई field बनेगी वही option से create हो सकती है. या तो उसका properties as a column होगी और as a measure. वो क्या होगी I'll explain. You can create any calculated field using two options. One is either as a measure or as a new column. और किस सिनेरियो में क्या करना है I'll explain it to you सब कुछ, okay? As a measure or as a column. New measure or new column दो ही ऑप्शन है फील्ड को क्रिएट करने. जितना टाइम दे लो. This is important. And whatever concept we are discussing, that should be reflected in your group assignment. I'm telling you, you have to further visualize और अच्छा बनाया और कोई concept easy नहीं है. That is all. group assignment में सारी चीजें देखो, okay? पता है ना ऐसे प्रैक्टिस करेंगे. दोनों है फील्ड की प्रॉपर्टीज या तो ऐसे मेजर ऐसे कॉलम है. नाउ अंडरस्टैंड. Now this is example. Please. Now there are some marks, okay, and 12 studies on them. Then there are three students which have marks in multiple subjects, okay. Now if I want to calculate percentage for Ashish, कैसे calculate करेंगे? Subtract by total marks. Sum of Marks सारे subtract. ऑप्शन मार्क्स देन सम ऑफ मैक्सिमम. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले एग्रीगेशन कर रहे हैं, फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं. Got this? But if you create any field, for example, डेटा के मैं फील्ड बनाना चाहता हूँ परसेंटेज की. If I use percent as a column, I got this? तो ये क्या करेगा? ये समेशन पहले एग्रीगेशन नहीं करेगा. It will calculate value row wise. Every row की वैल्यू कैलकुलेट करेगा. I got this? तो ये सारे सब्जेक्ट की पहले परसेंटेज निकालेगा. Have you got this? तो पहले सब्जेक्ट की परसेंट कैसे निकालेगा? Whenever you discuss in Excel, please tell me the output based on cell reference. E2 by F2. E2 by F2. F2. So इसने हर एक सब्जेक्ट की क्या निकाली? इंडिविजुअल परसेंटेज. तो जब भी कोई if you are using creating field as a column, the row level calculation happen. Every row के लिए कैलकुलेशन करेगा, वैल्यू निकालेगा. 10,000 रो है, हर रो की वैल्यू कैलकुलेट करेगा. You got this? So I'm just like doing. Okay? Then make it sum. तो इन चार वैल्यू का सम करेगा कितना होगा? 2.96 यहाँ पे नीचे. चारों वैल्यू सेलेक्ट कर दे, आ जाएगा. Yes, sir. This is valid calculation or not? No. No. Because a human नहीं ना divide by 4 भी करना होता है, वो नहीं करेगा. इसलिए क्या करेगा? पहले कैलकुलेशन करेगा, फिर एप्लीकेशन करेगा. So if you are using creating field as a new column, first step is calculation, second is aggregation. Calculation then followed by aggregation. Have you got this? So इसमें 99% time will get a wrong calculation. Have you got this? So this is if you are creating field as a column. हर रो की एक कैलकुलेशन होगी.
if you are using as a column, if you are creating field as a column, every row has its own calculation and value. बाद में किसी और लेवल पे जाकर उसको एग्रीगेट करोगे तो मे बी यू रन हो सिंपली. तो पहले क्या हैपन होता है, पहले फर्स्ट कैलकुलेशन देन एग्रीगेशन. इसके नोट्स लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एक्सेल फाइल तो मैं अपलोड कर दूंगा, बट समझ में आना चाहिए क्या हो रखा है इसमें. Now if I want to create field as a measure, तो वो इसके अपोजिट करेगा स्टेप्स में. पहले क्या करेगा? एग्रीगेशन. फिर क्या करेगा? कैलकुलेशन. तो ऐसा एक्चुअली क्या होगा? सम ऑफ ऑल ऑब्टेन फ्लोट, राइट? फ्लोट सम ऑफ ऑल मैक्स. तो whatever level you want to do the analysis, पहले एग्रीगेट करेगा फिर कैलकुलेट करेगा. So this is the correct. You see this? So 99%, 95, more than 95%, whenever somebody asks you to create a new field, please go option as a measure. New measure. I'll tell you scenario में कब कॉलम बनाना है, वो भी बताऊंगा. और mostly क्या यूज करना है? As a New measure. So कॉलम पहले कैलकुलेशन फिर एग्रीगेशन, मेजर पहले एग्रीगेशन फिर कैलकुलेशन. Don't talk. ये एवरेज भी शो कर ही रहा है. जितना भी टाइम चाहिए नोट के लिए ले लो. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कहाँ से रिपीट करें? कॉलम में फर्स्ट क्या कर रहा है? पहले कैलकुलेशन कर रहा है, फिर ऐड कर रहा है, फिर एग्रीगेशन. मेजर में क्या कर रहे हैं? पहले एग्रीगेट कर रहे हैं, फिर कैलकुलेट कर रहे हैं. पहले सम कर रहा है, एग्रीगेशन सम लगा रहे हैं ना, फिर कैलकुलेट कर रहे हैं. कर रहे हैं ना, बात अगर मैं ये क्लियर करूँ सम कर रहा हूँ ना. सब फॉर्मूला नहीं लगा तो तुम देख ही नहीं रहा. सब तो सेम बच्चे आ जाता है. ओके, तो सेल्स के आपको किसमें क्या सेल्स के लिए क्या रहेगा? एज अ मेजर एज अ कॉलम. Measure. सेल्स को हम लोग कैटेगरी लेवल पे भी सम कर सकते हैं, सेल्स को हम स्टेट लेवल पे भी सम कर सकते हैं, गॉट दिस? कैलकुलेट कर सकते हैं. सेल्स को हम किसी भी लेवल, किसी भी न्यू कैटेगरी लेवल पे कैटेगरी, राइट? सो वो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी. सो इफ आई वांट टू क्रिएट, प्लीज लिसन टू मी, अभी देख लो, बहुत टाइम है. So I want to create a new sales, okay? तो उसके लिए मुझे as a measure यूज करना है. तो मैं प्राइस उसमें यूज होगा. I just type, I take it directly into just a new measure, okay? और जो भी field यूज हो रही है उस पर राइट क्लिक करके you can just type new measure. और देखो न्यू कॉलम का ये ऑप्शन है. Can you see this? न्यू मेजर के नीचे क्या है? न्यू कॉलम का ऑप्शन है. So just select new measure. If you just select new measure, you can see working on it. And it And not responding. Shall. not responding. दो बार यूज हो गया ना, तो ये सेम. मुझे क्यों मर गई? Now this space is Dex programming space, this function. ये जो space है, this is Dex programming space. यहाँ पे आपको कुछ भी, so whatever you typing here, you need to follow all Dex programming language, syntax and everything. Have you got this? तो हमको मेजर क्या बनाना है? एक बार देख लो. Price and quantity. बाद में क्या बनाना है? Sales. Sales का फॉर्मूला क्या होता है? Price into बात quantity. को मेजर बनाना तो क्या करना है? Sum of price multiply by sum of quantity. Quantity. Sum. That sum के बाद यहाँ से पिक करना है फिर. Okay. Okay. Otherwise price Price. bracket close multiply by sum of quantity. इसलिए सेक्शन में कुछ लोग प्राइस के प्रॉफिट भी लेंगे. सेल्स में प्रॉफिट नहीं आता है. प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी. एक और फॉर्मूला. सम ऑफ
प्राइस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ क्वांटिटी। तो पहले एग्रीगेशन करना, फिर पहले कैलकुलेशन के बाद, सॉरी पहले एग्रीगेशन फिर कैलकुलेशन। सेल्स आके अगर वन दिस मेजर क्विक मेजर, न्यू मेजर सर, न्यू न्यू मेजर क्रिएट करके उसमें फॉर्मूला लिखो, सेल्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ क्वांटिटी। एंटर कर किस स्टेप चाहिए इसमें कर दिया। guys, once you create this measure you have to create the object, you need to solve objective also. This is not the objective. मैथ चार्ट छोड़ो, कॉलम चार्टिंग आके ऑब्जेक्टिव का आउटपुट बताऊं। किस स्टेप में आइए सेल्स आ तो गया, आगे बढ़ते हैं। ये आया तो सेल्स, उसी पे क्लिक कर। कितने लोगों ये हो गया? कितने लोगों ने मेजर बना लिया? How many people have created this measure? कोई एरर नहीं आया ना? किसी को एरर आया तो मेरे को बताओ। रिकॉर्डिंग एरर, फार्मूला चेक करो। डेफिनेटली फार्मूला ब्रैकेट नहीं होगा। मध्य प्रदेश का सेल्स आ रहा, ये मेजर हटा देना, मेजर लिखा हुआ है। प्राइस के बाद बहुत से लोगों ने वो स्मॉल ब्रैकेट क्लोज नहीं किया होगा, दैट इज द और प्रॉब्लम। डबल लगाएंगे सेल्स पूरा लिखा, पूरा वापस तूने ब्रैकेट वियर्ड लगाया, पहले ब्रैकेट लगा, पहले ब्रैकेट लगा, पहले ब्रैकेट लगा, ऊपर से प्रॉफिट लेके चल रहा है तो प्राइस पूरा ही लिखा है। हाईएस्ट सेल्स कहां हो रही है? मध्य प्रदेश। मेजर से पहले कैन यू सी मेजर कैलकुलेटर सिंबल। Yes. ये कैलकुलेटर सिंबल किससे आता है? मेजर। तो कहीं भी डेटा सेट में कैलकुलेटर सिंबल दिए समझ आना क्या है? मेजर है। ये कैलकुलेटर है यूजिंग टेक्स्ट लैंग्वेज। दिस इज द कैलकुलेटिंग मेजर यूजिंग टेक्स्ट लैंग्वेज। अभी बनाया नहीं पाकिस्तान मैप में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कश्मीर ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहा है। कोई बात नहीं। पाकिस्तान का रास्ते ना मराना देख लेंगे मैप चार्ट बाद। अभी तो लगाया ओके आप ऑब्जेक्टिव 5 अचीव हो गया। हाईएस्ट सेल किस स्टेट के? मध्य प्रदेश। हाँ ऑब्जेक्टिव 6 मैप छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव 6 पे फोकस करो। गाइस ये पूरी स्टेप्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस जो असाइनमेंट में ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सिंपली एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव 6 now I want to understand of the customer distribution based on profit category. समझो customer distribution based on profit category. अब profit की वैल्यू 3 सिंबल में होगी, प्लस माइनस और जीरो। कैसे ना प्रॉफिट या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, ब्रेक इवन होगा, राइट? और कोई फोर्थ कैटेगरी होती है? जीरो होगा या जीरो माइनस होगा या प्लस होगा। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड इन दीस थ्री कैटेगरी हाउ मेनी कस्टमर्स आर कमिंग। फॉर एग्जांपल कितने पॉजिटिव कस्टमर हैं, पॉजिटिव प्रॉफिट कस्टमर हैं, कितने नेगेटिव प्रॉफिट कस्टमर हैं, कितने न्यूट्रल कस्टमर हैं। हैव यू गॉट दिस? दिस इज माय ऑब्जेक्टिव 6। अब लिख लीजिए। I want to understand the customer distribution based on profit category.
तो 3 कैटेगरीज में पॉजिटिव प्रॉफिट, नेगेटिव प्रॉफिट और न्यूट्रल प्रॉफिट में कितने कस्टमर हैं? एंड ज्यादा कस्टमर किस कैटेगरी में? You got this? This is objective sales profit. नेगेटिव प्रॉफिट मतलब लॉस। Guys, I'm going too fast or too slow? परफेक्ट Okay. परफेक्ट। अभी बता देना, पहले अभी बता देना, ठीक है। 10 सेशन बताने कोई वक्त नहीं, सब कोर्स बहुत ही फास्ट था। अब तो हो गया। ओके बंद। Usually I'm going very slow from my perspective. इसको रोको। Customer distribution based on profit category. Positive and negative and neutral. Now understand, guys. देखो, objective से चलिएगा। Now ये if I want to see the data, I will need to go to data view. Now listen to me. Table view, sorry. This is data. This is table view. नाइस। We have created one measure. कौन सा measure बनाया था अभी? Sales. Can we have a sales column? No. कहाँ? नहीं है। No. Do we have a sales column? No. अब ठीक है? Do we have a sales column? No. Now listen to me. Why? Because measure is always virtual field. तो पहले aggregation हो रहा है, तो इसको अभी पता नहीं किस लेवल पे aggregate करोगे, तो Power BI is unable to map that measure. So measure is always a virtual field. वो रहती है Power BI environment में, but that will not reflect in table view. But if you are going to create column, New column. column में क्या होगा? वो आ जाएगा। calculation होगी. Every cell will have a value. वो यहाँ पे appear होगी. If you are creating any field as a column, that will come in a physical उसी field. समझ। ठीक है, every row calculation होगी, तो उस column में हर cell की value, तो वो यहाँ पे appear होगी. I'll show you. Now, whatever objective 6, यहाँ पे we are going to create a field for profit category and Y as a column on the stand. Profit वाले column में 3 टाइप की वैल्यू, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। एवरी वैल्यू के साथ एक हमारा प्रॉफिट कैटेगरी अटैच होगी, या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या न्यूट्रल होगी। तो इन दिस सिनेरियो फॉर एवरी रो आई नीड अ वैल्यू, राइट और रॉन्ग? एवरी रो आई नीड अ वैल्यू। तो हर एक नया कस्टमर है, उसके लिए मुझे एक वैल्यू चाहिए प्रॉफिट कैटेगरी की, तो वो कहाँ से कैलकुलेट होगी? प्रॉफिट से। तो फॉर एवरी सेल दैट इज कमिंग इन प्रॉफिट कॉलम दैट नीड अ वैल्यू इन प्रॉफिट कैटेगरी। अगर यहाँ पे -17 है तो प्रॉफिट कैटेगरी में क्या आएगा? कैटेगरी नेगेटिव। अगर 0 है तो क्या आएगा? न्यूट्रल। पॉजिटिव है तो क्या आएगा? पॉजिटिव। इन दिस सिनेरियो यू हैव टू यूज क्रिएट फील्ड एज अ कॉलम, जहाँ पे हर कॉलम में, इंटायर कॉलम में हर सेल में वैल्यू रिक्वायर्ड। वी गॉट दिस? यहाँ पे कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं, कोई एग्रीगेशन की जरूरत नहीं, हर एक वैल्यू की एक वैल्यू होनी चाहिए इन दैट कॉलम। एवरी रो नीड अ वैल्यू। इन दिस सिनेरियो वी यूज फील्ड एज अ कॉलम। तो प्रॉफिट कैटेगरी को जो लोग फील्ड बनाएंगे वो एज अ कॉलम। इसको समझ में आ गया? लिख लो। मेरा टेबल व्यू पूरा एम्प्टी है। नल नहीं, पूरा ब्लैंक ही दिखा रहा है। इसमें डेटा सेट तुमने अभी ओपन किया, इसमें डेटा सेट तुम्हारा सोर्स दिखाया कि नहीं दिखाया था? तूने फाइल चेंज की है लोकेशन? नहीं वही है। वो वाला पीसी ज़्यादा ठीक है ना? वो वाला पीसी ज़्यादा ठीक लेकिन पूरा काम आ रहा आ गया जो कर रहे थे इंफॉर्मेशन बढ़ गई। ब्लैंक था ना?
कैसे? जिनको ब्लैंक दिख रहा है स्क्रॉल डाउन करो, नीचे लिखा है ब्लैंक वाली रोज में डिलीट नहीं की है, या तो तुम कुछ नल वैल्यू दिखा रहा है ब्लैंक। यस सर। स्क्रॉल डाउन करो, नीचे सबसे लास्ट वाले रोज में वो सारे दिखा सके अब कौन है ब्लैंक? Okay, class. Now you understand where you need to create method, where you need to create column. यस सर। Clear होगा कि नहीं? यस सर। If we want to create a field where every row needs a value, तो वहाँ पे ऐसा column. Column. If you want to create a field which is going to aggregate on multiple categories, later on, तो वहाँ पे ऐसा method use करते हैं. Simple, okay? चलो. इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे. कंफ्यूज मत होना, सही आंसर करना. क्वेश्चन का क्विज पूरा ओपन है. ओपन एवरेज 5 और 6 ही होगा. क्विज ओपन नहीं होता, क्वेश्चन भी ओपन होता है, आंसर भी ओपन होता है, बस ठीक करना होता है. ओपन ही तो होता है, क्लोज क्वेश्चन कैसे होता है? ओपन Okay, so what we are going to create a new column for product category. अगर यही if I want to create a product category in Excel file, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? If conditional function. If ये column में value में less than 0 हो, वही यहाँ करना. Now simply कैसे? Same syntax same करते हैं. Profit right click करके new column. अभी let's open होगा. Now इसमें मुझे क्या पहले एक बार देखना. पहले समझ लो. Product category एक function. If profit जो वहाँ पे आए वही select करना है. Direct टाइप नहीं करना है. Okay? If profit is less than equal to 0, comma क्या होना चाहिए वैल्यू? नेगेटिव. अगर 0 से कम है तो क्या होना चाहिए? कैटेगरी नेगेटिव. अभी लिखना मत करो, पहले देख लो. कितना समय बचा है वो लिख के डालें. If then else क्या हो जाएगा? Positive. So how many categories you will receive? 2. Positive or Negative. But how many categories we want? 3. Positive, negative and neutral. Now अब यहाँ पे अगर एक्सेल होता तो एंड फंक्शन यूज कर लेते थे स्टार्टिंग में. दो लॉजिकल टेस्ट, राइट? बट एंड फंक्शन यहाँ काम नहीं करता. So we have to use another if function within if function. Nested. Nested concept होता है, nested function कुछ नहीं होता. Multiple function एक फॉर्मूला यूज करो उसको nested concept होता है, ठीक है? Nested function कुछ नहीं होता. So we are going to use if function again, if function. So if Positive. profit equal to 0, तब क्या केस में क्या होगा? Neutral. Neutral. Comma. Or else Positive. positive. Have you got this? Yes. Then you have to close two bracket or bracket function. So if less than 0 है, then negative. अब बची कितनी दो वैल्यू 0 और पॉजिटिव. उसके लिए अगेन एक फंक्शन है 0 तो न्यूट्रल, बाकी रिमेनिंग वैल्यूज पॉजिटिव. So if you have just one two categories, एक ही बार काम चल जाएगा. But more than 2 categories, you use if function multiple times. अर्ली कैटेगरी तो उसका कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन देखो किस कैटेगरी में हाई कस्टमर आ अच्छा रहा है. वो बस इन्वर्टर का पता लगता है. एक नया चार्ट बनाओ. किसी को एरर तो नहीं आया? एरर आया तो फार्मूला देखो, फार्मूला कोई. Now, once if you created this column, now to go to the table view, now we have column add product category. So
मेजर मींस मेजर के टाइटल कौन सी का मेजर डबल कोड लगाओ क्लोज करो अरे ये तो समझना नहीं है Yes, sir. परसेंटेज कितना है कितना परसेंटेज है कितने परसेंटेज कस्टमर कुछ स्क्रैच मार दिया प्रोडक्ट कैटेगरी हाईएस्ट कस्टमर किस कैटेगरी में है कितने परसेंट 63.7 नेट नेगेटिव में कितना 31 समथिंग राइट कितना 5 एनीबडी सिटिंग है ना फिर क्या हाँ ठीक है पर उसका नहीं सब 63.09%. डेटा फाइल में ऐड नहीं होते ये नए फील्ड्स और कॉलम्स में डेटाबेस में ऐड नहीं हो सकते लाइक जो सेल्स वाला कॉलम सोर्स नहीं सोर्स ये भी नहीं हुआ चेक किया था नहीं ये सोर्स फाइल में बोल रहा है सोर्स जो लेते हैं सोर्स में कुछ नहीं होगा एक्सेल वो तुम्हारी सेव है नहीं मैं वही बोल रहा था डेटाबेस उसमें कुछ नहीं होगा ठीक है सर एम्पटी रोज को हेडिंग भी देना मगर सही था वो ग्राफ नेगेटिव वाला इधर दिखा रहा है न्यूट्रल वाला बीच में दिखाना चाहिए था अरे नहीं है यहाँ कस्टमर नेम नहीं है ना तो मैप की कस्टमर नेम क्यों कर रहे हैं यार ये नहीं है पहले प्री प्रोसेस में आप कर दो ना मैं बोल रहा हूँ एक्सेल में ये सब कर दो आप कर दो दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल पर उसका एनालिसिस क्या होगा यू आर यूनिट होगा कस्टमर नेम ये क्या दिया कस्टमर नेम की पूरी रोज में बात करनी है एक्स पे प्रोडक्ट कैटेगरी और वाई पे काउंट ऑफ कस्टमर सम ऑफ इसको लिखना तो ये वाला ग्राफ सेकंड काउंट ऑफ कस्टमर और उसके परसेंटेज करते हैं काउंट का क्या बनेगा क्या और डेटा लेवल ऑन कर देंगे इसको सेक्शन 5 कैसे किया है और फाइल क्रिएट कॉपी पेस्ट करके नया करना इसको सेव एज करना अरे नीचे वो है जिसके जैसे च्युइंगम खा के चिपकाई हुई सीट के नीचे और मेरे बार बार हाथ जा रहा ये काटना पड़ेगा आधा ठीक करेगा तभी ठीक होगी एक्चुअली इसको लंबा करने में तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या नहीं वाई एक्सिस का वो चेंज कर मैक्सिमम वाले को 1 कर देंगे Please listen to me. Now, if I just press enter, you can see I'm getting new field as a product category. उसका सिंबल देख लो क्या होता है. इसको देखो डिफरेंस. मिल गया सिंबल? Now product category को select करो, customer name को if I just create a vertical column, customer name को count करो, I'll get this, okay? Highest customer कहाँ है? Positive है. If I want to capture the percentage, 63%,
When you see this, that's the positive. What you need to do. Now you have a 3 new chart. Now this chart is going to add a lot of insight in your personal dashboard. अगर आप सिर्फ पॉजिटिव में फोकस करना चाहता हो तो मैं देखो कितने परसेंट कस्टमर में 3 सेगमेंट्स में आ रहा है, पॉजिटिव कहां जा रहा है. और I can also check in the map. I can also check in the profit pattern. So you need to update your dashboard. या तो नया बनाओ. So total you have 6 charts. 3 पहले बनाए थे, 3 आज बनाए. Now with this 6 chart, what do you think the most important 4 charts? Because dashboard में जितने ज्यादा चार्ट होंगे उतना वो क्लटर हो जाएगा. Out of those 6, what are the most important 4 or 5 charts? Then recreate your dashboard. या उसको ही अपडेट करो या अरेंज करो. नया डैशबोर्ड बना के अरेंज करो या उसको अपडेट करो. सेल्स करो and I'm going to take this. प्रॉफिट रीड करना भी नहीं. मैं यही अच्छा संडे का इसमें ह्यू डाल देते ना अपन, जो ये कलर्स चेंज किए तो कैसे किए थे? हिट मैप में अरे चार्ट को इसीलिए तो चार्ट ये तो था अभी मैंने अभी देखा. तो ये डालने का कैसे इसमें सेटिंग आ रही. ठीक है. Guys, I have asked you to update your dashboard, not to make lot of discussion, okay? Discussion नहीं करना. डैशबोर्ड को अपडेट करना है. नहीं भी तो नया डैशबोर्ड बनाओ. Out of those 6 charts, what are the most important 4 charts that will give you more insight, okay? पहले के 3 और अभी के 3 कौन से हुए? 1 2 3. अच्छा तो लग रहा है. इसकी जरूरत नहीं है इसकी. ये ठीक लग रहा है मुझे. अब इसको ये सेल्स वाला ज्यादा ठीक है रेवेन्यू के लिए. उसको लिखने दो, तुम मत लिखो. ये था हाँ तो सारी नेना ने तुमको मतलब नींद क्यों आती है क्लास में? क्लास में स्ट्रेचिंग करनी होती है. अच्छे से करनी सिखाओ. तो यहाँ स्टेज किया. किसी को एरर आ रही है प्लीज टेल मी राइट नाउ. हॉस्टल में कुछ नहीं रखना है. सही लग रहा है. ओके चलो डैशबोर्ड तो अपडेट कर देंगे. प्लीज लिसन टू मी क्लास. छोड़ दो. आगे भी नहीं आगे आगे नहीं बता देना. बात लिसन. अभी क्या करना है? डैशबोर्ड ऑफिस से डैशबोर्ड अपडेट करना है. कर दोगे. हाँ लिसन. Go to Google Drive folder. Power BI के जो Drive folder उसमें जाओ. वहाँ Google Drive पे जाओ. जो Power BI का folder में आप share with device. उस folder को open करो. वहाँ पे एक नया folder होगा create. है कि नहीं है?
ऐसी न्यू मॉडल केस, उसको ओपन करके जो केस है उसको पढ़ना स्टार्ट करोगे। उसमें पीडीएफ फाइल होगी, व्हाट इज नेम ऑफ पीडीएफ फाइल? पिक्चर परफेक्ट। उसको ओपन करो, दिस इज जस्ट 3 पेज केस, 3 पेज का केस है, 1 2 3, एक पेज खाली डेटा डिटेल से करते 1 2 3 3 पेज का केस है, इसको अभी पढ़ो और प्लस व्हाइल रीडिंग आल्सो टेक द नोट्स ऑफ द केस। केस क्लास हुई कि नहीं कैसे